आइए सीधे लिए चलते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में बोल रही हैं। They are supporting the BJP candidates, and under their instruction, BJP is getting so many provocation, and they are beating the people, they are murdering the people, and they are looting the vote. I think this should create another bad history. In our democracy is the festival of the people. Democracy is the festival of the people. Now, if you don't allow the people to cast their vote, what do you think that election commission? Why people will say that election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts, don't behave like this in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote, Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, that Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day? The Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are, whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the befitting result, I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over, today is also 30 seats. So all two, I am showing you, be perfect. সেগুলো আমরা সমস্ত সিসিটিভি টিভি দেখে আমরা সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে বলবো। দ্যাট ইন্টারনাল ম্যাটার আই ক্যানট ডিসকাস হিয়ার ইন দ্য রুম। তোমাদেরও মেয়েদের যেভাবে প্রত্যেকটা বিজেপি মিছিলে মলেস্টেড হতে হচ্ছে, আই এম সো সরি। I am sorry, Mr. Election Commission, you must know, and Home Minister, how the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. দেখুন, আমি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি, আমি পার্সোনাল সিক্রেসি মেনটেন করি। আই ক্যানট সে হোয়াট এভার আই ডিসকাসড উইথ দ্য অবজারভার্স or whatever I discussed with the governor, that is absolutely my confidential and secret matter that I am not going to disclose. দিদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে কিছু বলবেন? दीदी अमित शाह पूछो ना, वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। चलो चलिए गाड़ी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त आरोप लगाया है। मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली क्यों करते हैं? ये लोकतंत्र जनता का उत्सव है और लोकतंत्र में चुनाव के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, किस तरह से बरसी हैं प्रधानमंत्री मोदी पर ममता और इसका मतलब क्या निकालें? अनुपम।
जी देखिए, ममता बनर्जी ने साफ साफ दो लोगों पर आरोप लगाए हैं। एक गृह मंत्री पर आरोप लगाया है कि वो सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो बीजेपी के फेवर में काम करें। और दूसरा जो बड़ा आरोप लगाया है कि इलेक्शन के दिन ही क्यों प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं या वक्तव्य रख रहे हैं, जो सारे टीवी पर दिखाया जा रहा है, सारी एजेंसीज पर दिखाया जा रहा है, ये एमसीसी का उल्लंघन है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अचरज होता है। अनुपम, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया। चुनाव पर्यवेक्षकों से भी ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरी बात हुई है और वोटरों को गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वोट देने से रोका जा रहा है। तमाम गंभीर आरोप बीजेपी पर ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं और ये भी कहा है कि क्या चुनाव कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वोटिंग वाले दिन अगर वो चुनावी रैली करते हैं तो चुनाव पर्यवेक्षकों से उन्होंने बात की, अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है और जनता के बीच में आकर यहां ममता बनर्जी ने ये कहा है कि उनके वोटरों को, डीएमसी के वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है और गांव में जाकर गांव के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है जो कि डीएमसी के वोटर हैं और सरासर ये गलत है, ये चुनाव कानूनों का उल्लंघन है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह पर भी आरोप लगाया। अनुपम, आपकी बात पूरी अधूरी रह गई थी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। क्या स्थिति है, किस तरह से वोटिंग चल रही है और ममता इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हैं? ममता बनर्जी नाखुश हैं जिस तरह से वोटिंग चल रही है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि कई जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है, बूथ कैप्चर किया गया है, एजेंटों के साथ मारपीट की गई है और उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सेंट्रल एजेंसीज को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही सेंट्रल एजेंसीज ऐसा काम कर रही हैं जो बीजेपी के फेवर में हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा है कि क्यों चुनाव वाली तारीख पर प्रधानमंत्री टीवी पर आ रहे हैं और ये एमसीसी का उल्लंघन है। इस पर वो लगातार चुनाव आयोग की कह रही हैं। चुनाव आयोग पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग की खामोशी से उनको अचरज होता है। अनुपम, स्थिति क्या है इस वक्त, वहां क्या चल रहा है, नंदीग्राम में किस तरह से वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, क्या वो जमीन पर दिखाई दे रहा है? अनुपम, ममता बनर्जी इस वक्त इस जगह से निकल रही हैं, जानापाड़ा जो बयाल इलाके में है, यहाँ से निकल के वो सीधे आगे की ओर बढ़ रही हैं। हम लोग भी उनके पीछे हैं, उनके कॉन्वॉय के साथ हम लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं वो कहाँ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के पहले यहाँ से आज ही के दिन निकल जाने की बात थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो आज यहाँ शाम तक निकल जाएंगी क्योंकि कल उत्तर बंगाल में चुनाव प्रचार करना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वो यहाँ रुकेंगी, यहाँ रात में रुकेंगी या कल सुबह निकलेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी अब लगातार घूम रही हैं। इस वक्त जानापाड़ा, जहाँ पर लगभग 2 घंटे तक उन्होंने बूथ में बैठी रही, वहां से वो निकली हैं और उनका काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। अनुपम, इसके अलावा नंदीग्राम में सुबह से अभी तक जो 71% वोटिंग हुई है, वहां किस तरह का माहौल आपने देखा? ये देखिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ी और जबरदस्त हिंसा की खबर कहीं से भी नहीं आई है। लगभग पूरा दिन निकल चुका है, आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और अब तक बहुत बड़ी हिंसा जैसे कि पुराने जमाने में हम लोग देखते थे या पुराने चुनावों में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा पिछले, इसके अलावा पिछले जो विधानसभा चुनाव थे वहां भी देखा, बम गिरते थे, शव गिरते थे, कम से कम 2, 3, 4, 5 लोगों की जान जाती थी, गोलियां चलती थी। उस तरह की हिंसा अभी तक द्वितीय चरण लगभग समाप्त होने पर है, ऐसी अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, नंदीग्राम में छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, इसके अलावा देवरा में छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। केशपुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की कल रात मौत हुई है, उसके बाद थोड़ा तनाव बना हुआ है। दक्षिण 24 परगना से बहुत बड़ी हिंसा की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी, देखिए जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं जहां जहां से ममता बनर्जी गुजर रही हैं। इस वक्त जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और लगातार ममता बनर्जी जहां जहां से जा रही हैं, जो शुरुआत हुई थी बीजेपी की ओर से जय श्री राम बोलकर उनको चिढ़ाने की, वो ट्रेंड, प्रचलन हम लगातार नंदीग्राम में भी देख रहे हैं। अभी जिस जगह से ममता बनर्जी गुजरी वहां से जो सड़क किनारे के लोग खड़े हुए थे, जय श्री राम का लाना लगा रहे हैं और ममता बनर्जी का काफिला रुका नहीं है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अनुपम, हम आपके पास दोबारा आएंगे
लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, बंगाल में अपडेट देते हैं। इस वक्त शाम लगभग 3:45 बजे 71.07% वोटिंग और असम में 3 बजे तक 58.78 यानी कि 59% के लगभग वोटिंग हो चुकी है। 71% वोटिंग बंगाल में हुई है 3:45 बजे तक। और ये जो वोटिंग प्रतिशत है बंगाल में जबरदस्त वोटिंग प्रतिशत है और ये खासतौर से नंदीग्राम में भी बम्पर वोटिंग हुई है और नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी के साथ हैं, लेकिन उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। ये आरोप ममता बनर्जी लगातार लगा रही है। तो मतदान के दिन रैलियां करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है ममता बनर्जी ने। सुरक्षा की जबरदस्त इंतजाम है। तो अब नंदीग्राम की लड़ाई है, जो बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम है, वहां पर ममता बनर्जी आज अपने चुनाव के दिन जब उनकी किस्मत ईवीएम्स में बंद हो रही है, ऐसे में वो बाहर आती हैं और वो लगातार आरोप लगाने से नहीं चूकती। हिंसा भी होती है, छिटपुट घटनाएं भी होती हैं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारा भी लगता है। माहौल क्या है नंदीग्राम में इस वक्त? पीक आवर में अब तक कोई बड़ी घटना, बड़ी हिंसा की घटना की खबर नहीं है। यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी शांति से लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त किए गए हैं। बूथ के भीतर जो है सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है और सड़कों पर पुलिस को तैनात किया गया है। बूथ के भीतर जो राज्य पुलिस है वो नहीं है, बूथ के भीतर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्सेस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह कर रही है, कहाँ खड़ा होना है, भीतर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो देख रही है। नंदीग्राम की तरफ देश देख रहा है क्योंकि बंगाल चुनाव का सबसे रोमांचक रण यही हो रहा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हाई प्रोफाइल जंग की इबारत लिखी जा रही है। नंदीग्राम की जनता जनादेश तय कर रही है, लेकिन उससे पहले जीत हार की बेचैनी यहाँ साफ साफ देखी जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह बाइक से दौरे पर निकले, पहले आकर मतदान किया और फिर अपनी जीत का ऐलान भी। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। नंदीग्राम में एक एक वोट की मारामारी है। नंदीग्राम के संग्राम की तलखी यहाँ खुलकर दिख रही है। बीजेपी ने कम से कम 11 बूथों पर धांधली की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करवाई। नंदीग्राम के बथुआबाड़ा गांव में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली। बीजेपी का आरोप है कि उसने टीएमसी की धमकी से डरकर अपनी जान दे दी। बूथ पर कब्जे की शिकायत टीएमसी की तरफ से भी की गई। दोपहर तक शुभेंदु के काफिले पर हमले की खबर भी आई। हालांकि शुभेंदु की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन सब के बीच, हंगामे और बवाल के बीच अच्छी खबर ये रही कि नंदीग्राम दिल से मतदान कर रहा है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। तस्करी उद्योग, माफिया उद्योग, दीदी ने गरीब से सेहत और नौजवान से उनका भविष्य छीन लिया। भाई और बहनों, जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी, ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है।
भाई और बहनों, बीजेपी वो पार्टी है जो बंगाल के सपूत मां भारती के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों और संकल्पों से जुड़ी हुई है। जिस तिरंगे के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, बीजेपी उस तिरंगे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी शान से फहरा रही है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये बाहरी बाहरी बोलकर देश के लोगों में भेद करना बंद करिए दीदी, बंद करिए। ये बाहरी बाहरी बोलकर संविधान का अपमान करना बंद करिए दीदी। भाई और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ममता दीदी इस चुनाव में अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे रही है क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं, वो अपने 10 साल के काम का हिसाब दे रही है क्या? आप जरा बताइए, ये 10 साल के अपने काम का हिसाब दे रही है क्या? दे रही है क्या? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रही है। सच्चाई ये है कि उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। दीदी, ओ दीदी, उलूबेड़िया के, हावड़ा के ये लोग आपसे जानना चाहते हैं, अम्फान राहत के पैसे कहां गए? नंदीग्राम में लगातार आज तक के संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले नंदीग्राम में माहौल क्या है ये बता रहे हैं सीधे नंदीग्राम से हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू। पोलराइजेशन की हम बात कर जिस पोलराइजेशन की हम बात कर रहे थे, जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे थे, उसका असर ग्राउंड पे किस तरह से दिख रहा है इस चुनाव में, वो आपको दिखाएंगे। मेरी बाएं तरफ है मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या, और मेरे दाएं तरफ है हिंदू आबादी, और दोनों ही पार्टी लाइंस में बट चुकी है। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी है, वो इस बूथ में आके वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। जब हम मुस्लिम आबादी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं और ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये है, देखिए पोलिंग बूथ बीच में है, बीचों बीच यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, यहाँ पे पुलिस है, और किस तरह से बैरिकेड बना दिया गया है। आप देखिए पोलिंग बूथ के अंदर इस वक्त पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और इसी तरह का सिचुएशन है। और दोनों ही तरफ देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरह से ये जो आबादी है वो लोग उनके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस किसी ना किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप यही चल रही है। देख रहे थे ममता बनर्जी जब अंदर है वो फोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन पे इत्तला करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का टीम जो है वो बढ़ रही है। दोनों ही जो समूह है उनको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो लोगों में जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ममता बनर्जी का काफिला आया तो दोनों ही तरफ का गुस्सा यहाँ पे उभर पड़ा है और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वो करने की कोशिश कर रही है। और अंदर फिर एक बार चलते हैं, अंदर अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अंदर भी हलचल हो रही है, वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त, जो स्थिति बनी हुई है वो काफी नाजुक बनी हुई है यहाँ पे। क्या ममता ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के लिए तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये चिट्ठी बता रही है कि ममता हार रही हैं। उधर कांग्रेस भी ममता की अपील पर खुलकर साथ देने से बच रही है।
बंगाल का रण जब पूरे चरम पर है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक चिट्ठी के अपने अपने मायने तलाशे जा रहे हैं। एनडीए के बाहर जो भी दल हैं, उनमें से अधिकतर पार्टियों के नेताओं से ममता ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। चिट्ठी का आधार दिल्ली में एलजी को अधिक शक्तियां देने के फैसले से शुरू होता है और फिर उस चिट्ठी में गैर बीजेपी राज्यों में केंद्र की दखल, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, राज्यों को फंड ट्रांसफर में नाइंसाफी, दल बदल के लिए उकसाने और लापरवाही से निजीकरण जैसे आरोपों को गिनाया गया है। लेकिन जब ममता ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर बड़े विपक्षी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसमें ममता को हार का डर दिखा है। यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यह जो संदेश दिया उन्होंने, ये जो चिट्ठी लिखी, ये है तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन ये SOS है। ममता की ये चिट्ठी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य तक को गई है। चिट्ठी में कही गई बातों से कांग्रेस इत्तेफाक तो रखती है, लेकिन टाइमिंग पर पार्टी ने सवाल उठाया है। देखिए, जो चिट्ठी का टाइमिंग है वो वाकई में ही दिलचस्प है और प्रश्न भी खड़े करता है, पर जो चिट्ठी में लिखा गया है वो सत्य है और वो कोई आज राज का खुलासा नहीं किया ममता बनर्जी ने। ये बात कांग्रेस पार्टी सन 2014 से, जब से सत्ता के लगाम संभाली भाजपा ने, भाजपा का एक लक्ष्य है लोकतंत्र मुक्त भारत। हालांकि अब ममता की चिट्ठी पर विपक्ष के तमाम दलों की ओर से भी एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदय ने सभी विरोधी पक्ष के अध्यक्ष को, नेताओं को पत्र द्वारा समर्थन मांगने का काम किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें है। स्वयं पवार साहब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पश्चिम बंगाल के दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। बीमारी के कारण उनका दौरा स्थगित हुआ है। अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो अंतिम चरण में दौरा लग सकता है और हमारा पूरा समर्थन ममता दीदी के साथ है। आज सारा देश जिन चीजों से जूझ रहा है, जिन मुद्दों से परेशान हो रहा है, जिन मुद्दों को हमें एड्रेस करना चाहिए मिल करके, इकट्ठा होकर के, उन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया है और सबका आह्वान किया है और कहा है इन अ वे कि इस देश में जो लोकतंत्र है, जो व्यवस्था है, जो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस का नाम लेके कमिट किया है, उन सबको बचाने की, उनको सुरक्षित रखने की, उनको लोकतंत्र की जो नीतियां हैं, जो लोकतंत्र की भावना है, उससे जोड़ करके काम करने की जरूरत है, ना कि जो सरकार है उसके अधीन होकर काम करने की। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अहम है, उसको स्वस्थ और मजबूत डेमोक्रेसी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सब लोग इस पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की ये पहली बड़ी गुहार है। कोलकाता से पॉलिमी साहा के साथ दिल्ली से मौसमी सिंह, आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल में दूसरे दौर के चरण का मतदान हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त हो रहे हैं। उलबेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी को अपनी हार नजर आने लगी है। इस बार जो जोर से छाप कबल छाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस अब से कुछ ही देर पहले ये कहा है कि नंदीग्राम में ममता को अपनी हार दिखने लगी है और बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही प्रधानमंत्री किसान योजना हम लागू कर देंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का डर सताने लगा है, हार दिखने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आरोप ममता बनर्जी पर लगा दिया है कि ममता बनर्जी किसानों का पैसा उन तक नहीं पहुंचाती हैं। जो पैसा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हमने दिया वो किसानों तक नहीं पहुंचा है। वो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आते ही पीएम किसान योजना लागू करेंगे। तो नंदीग्राम में ममता को हार दिखने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा और यह भी कहा कि अफवाह फैलाती हैं ममता दीदी। सुनिए।
और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा बंगाल में, सुनिए। रिकॉर्ड ब्रेक मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। दीदी को ये कहता देखता हूं, कूल कूल। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी, तृणमूल कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। दीदी, ओ दीदी, अपना के बांग्लार भाई बोनेदेर होतार हिसेब दीते होबे। আপনাদের के মায়েদের ছেলের হত্যার হিসেব দিতেই হবে। রক্তের খেলা চলবে না। कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला। आइए सीधे इस वक्त हम अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, इस समय बंगाल से क्या खबरें आ रही हैं, किस तरह से मतदान चल रहा है? ममता, नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रहे हैं, लेकिन पहले मतदान की खबर। जी बिल्कुल, मतदान चल रहा है और इस वक्त मैं दिखाता हूं ममता बनर्जी यहां पर जो पार्टी ऑफिस है वहां आई हुई हैं। यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर रही हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी इससे पहले जिस बूथ में गई थी लगभग 2 घंटे वहां रुकी और उसके बाद सीधे वो यहां आ गई हैं। यहां आने के बाद अभी वो पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही हैं। और मतदान जो है, बहुत बड़ी हिंसा की खबर अभी तक कहीं से नहीं है। चिटपुट हिंसा की खबरें हैं, लेकिन वो राहत देने वाली हैं। जिस तरह से हमने पिछली बार भी देखा था और उससे पहले भी हम देखते आए हैं कि बहुत बड़ी हिंसा होती है, वैसी हिंसा की खबरें नहीं है। हिंसा की खबरें जो भी आई हैं, केशपुर में थोड़ी हिंसा हुई है, वहां तनाव है। नंदीग्राम में हल्की छिटपुट हिंसा है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। डेबरा में थोड़ा बहुत हुआ है और इसके अलावा दक्षिण 24 परगना से बड़ी कोई हिंसा की खबर नहीं है। तो अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है। राहत की सांस लोग ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहला चरण गया था उसी तरह से दूसरा चरण जा रहा है। बहुत बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई है। सईद, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है नंदीग्राम में, अनुपम,
कि वहां पर बूथ नंबर 7 पर कब्जा कर लिया गया, उनके एजेंट को बाहर निकाल दिया गया, फर्जी मतदान हो रहा है। इस बारे में कोई और जानकारी, इस बारे में कोई आधिकारिक शिकायत हुई है? कोई चुनाव आयोग से इस बारे में जानकारी मिल पाई है अभी तक? अनुपम, जी देखिए, ममता बनर्जी ने कहा तो है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी शिकायत हुई है या नहीं हुई इसकी जानकारी नहीं है। और ममता बनर्जी ने सिर्फ उसकी ही बात नहीं, सीधे सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया है कि गृह मंत्री जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, केंद्रीय बल हैं, उनके जरिए वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने कि प्रधानमंत्री जिस तारीख को वोट होता है उसी तारीख को भाषण देते हैं, टीवी में आते हैं, तो ये जो चुनाव संहिता है उसका उल्लंघन है। चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया है, कहा है चुनाव आयोग की चुप्पी सवाल खड़े करती है। तो जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जो खास संस्था है, मुख्य संस्था है, उस पर तो आरोप है ही। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी सीधे सीधे ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे। अनुपम, आगे भी हम आपके पास आएंगे। फिलहाल बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव में नंदीग्राम सबसे ज्यादा हॉट सीट है, जहां से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट आई, अब हम आपको दिखाते हैं। ये प्रयास यहाँ पर लगातार चल रहा है पुलिस के द्वारा कि किसी तरीके से, और जो सीआरपीएफ की तरफ से, कि किसी तरीके से लोगों को यहाँ से अलग किया जा सके, लेकिन बातचीत बार बार विफल हो रही है। यहाँ पर बातचीत बार बार विफल हो रही है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो आगे बढ़े थे, अभी उन्हें वापस इस ओर लौटना पड़ा है। दरअसल दोनों पक्षों की तरफ से यही कहा जा रहा है, एक पक्ष कहता है कि पहले उसे पीछा करो, वहां पर संख्या ज्यादा है, और दूसरा पक्ष उसके बाद। यहाँ पर अभी तक संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब और हम पीछे लोगों की संख्या देख रहे हैं। और इसके साथ ही अब देखिए, अब अगर आप इस ओर आकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जो अधिकारी इधर से निकले थे वो उस ओर पहुंचे हैं सबको समझाने के लिए, ताकि लोग समझ बूझकर थोड़ा थोड़ा पीछे हो और जो मतदान की प्रक्रिया है। और एक बार फिर देखिए, यहाँ पर जैसे ही इनकी किसी मांग को माना जाता है, वैसे यहाँ पर तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं, नारेबाजी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये लगता है कि ठीक है, इक्वल संख्या में दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ भी इस समय नारेबाजी और उसके बाद जश्न सा होता है। लेकिन दोनों पक्षों में कोई भी पूरी तरीके से अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है और इसीलिए यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा विकट बनी हुई है। समय जैसे जैसे बीत रहा है, मतदान के लिए निर्धारित वक्त को भी चुनाव आयोग को देखना है, यहाँ सुरक्षा कर्मियों को देखना है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम आज तक। नंदीग्राम से ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर आरोप लगा दिया है कि मतदान के दिन आप रैली क्यों कर रहे हैं, ये चुनाव कानूनों का उल्लंघन है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने चुनाव पर्यवेक्षकों से इस बारे में बात भी कर ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत कर ली है, वोटरों को गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा खराब चुनाव मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मतदान के दिन प्रधानमंत्री रैली करते हैं, ये चुनाव का उल्लंघन है और गांव के मतदाताओं को रोका जाता है वोट देने जाने से।